Hello students, the next semester has begun and the very first chapter which we are going to cover this time is chapter number 38, transformation of the sentences, and the exercises which are included in the syllabus this time are interchange of interrogative and assertive sentences, and the next one is interchange of negative and affirmative sentences. The very first exercise which we are going to cover is interchange of interrogative and assertive sentences. To transfer these kinds of sentences into each other, we need to understand what is an interrogative and what is assertive sentence, and after that we will learn the rules of changing these sentences. So let's begin. We will begin with defining assertive sentence. What is an assertive sentence? An assertive sentence is a sentence which tells us about some information or states a fact. Any sentence that tells us about something is called the assertive sentence, and it ends with a full stop. कोई भी लाइन जो हम बोलते हैं, चाहे वो फैक्ट है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, जो फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होती है इंग्लिश में, दैट इज़ कॉल्ड द असर्टिव सेंटेंस. थर्ड पॉइंट इज इट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव इन मीनिंग. एनी असर्टिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. नाउ व्हाट इज एन अफर्मेटिव and what is a negative sentence? I'll give you the example. Dhoni is a great player. Dhoni is a great player. We are telling something here. We are stating something. What are we stating? Dhoni is a great player. क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि धोनी एक बहुत अच्छा प्लेयर है. So this is the example of affirmative sentence, जहाँ पे हम कोई अपनी बात बोलते हैं. Example of negative sentence: धोनी is not a great player. धोनी एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है. तो दिस is the difference between affirmative and negative sentence. In affirmative sentence we simply state something, and in a negative sentence we deny something. हम किसी चीज़ के लिए ना बोलते हैं. I hope you are already clear about these sentences. Interrogative sentence में क्या होता है? We ask a question, obviously, and it ends with the question mark. Interrogative sentence ends with the question mark. For example, isn't Dhoni a great player? क्या धोनी एक great player नहीं है? हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. तो this is the example of interrogative sentence. So I hope you are clear about assertive and interrogative sentences now. Assertive sentences ऐसे sentences जिसमें हम कोई लाइन बोलते हैं या कुछ कहते हैं, और या फिर हम किसी चीज़ को डिनाई करते हैं. असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जांपल ये होगी. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हम क्वेश्चन पूछते हैं, राइट. नाउ हाउ टू कन्वर्ट द असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव. द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज विच वी आर गोइंग टू कवर इज इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस. इन असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने कैसे चेंज करना है, किसी सिंपल सेंटेंस को हमने क्वेश्चन मार्क वाली सेंटेंस को में कैसे चेंज करना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट. Let's see the rules. There are two steps to change an assertive sentence into interrogative one. First step is, if the sentence is affirmative, convert it into negative. The very first thing which we are going to do while changing assertive into interrogative, if the sentence given is affirmative, मतलब एक लाइन है, सिंपल कुछ हमने बोला हुआ है, उसको नेगेटिव में चेंज करना है. एंड इफ़ द सेंटेंस इज नेगेटिव वी हैव टू चेंज इन इनटू अफर्मेटिव. सबसे पहली चीज़ हमने जब असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हुए क्या करनी है, अगर तो आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है वो अफर्मेटिव है, उसको नेगेटिव में चेंज करो आप. और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में चेंज करो, राइट. एंड द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू is move the helping verb to the start of the sentence. जो helping verb है उसको आपने
सेंटेंस के बिगिनिंग में लेके आना है. I hope you are already clear about this fact because I have described it in the videos of tenses already कि इंट्रोगेटिव में चेंज करते हुए सेंटेंसेस को हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लगाते हैं, राइट. तो दिस इज द सेकेंड स्टेप विच यू विल डू इन चेंजिंग असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव. लेट्स सी द एग्जांपल. एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, ठीक है. जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी है धोनी वाली. धोनी इज़ अ ग्रेट प्लेयर. दिस इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट. तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है, लेट्स सी. मैंने आपको स्टेप फर्स्ट में एक चीज़ बताई है कि इफ़ दी सेंटेंस इज़ अफर्मेटिव तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको नेगेटिव में चेंज करना है. तो हमने ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है धोनी इज़ अ ग्रेट प्लेयर, वी हैव चेंज इट इनटू धोनी इज़ नॉट अ ग्रेट प्लेयर, नेगेटिव. तो हमने इसको अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज किया कि धोनी एक ग्रेट प्लेयर नहीं है. अब आफ्टर चेंजिंग द सेंटेंस इनटू नेगेटिव वी विल चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव. अब इंट्रोगेटिव में चेंज करते हुए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेके आना है, राइट. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़. तो हमने सेंटेंस बिगिन करना है इज़ के साथ. धोनी इज़ नॉट अ ग्रेट प्लेयर को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ना कि धोनी इज़ अ ग्रेट प्लेयर को, ठीक है. क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमें दिया गया था, इसको हमने चेंज करना है इंट्रोगेटिव में. तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने इसको नेगेटिव में चेंज किया. अब हम चेंज कर रहे हैं इसको इंट्रोगेटिव में. इज़न धोनी अ ग्रेट प्लेयर, क्या धोनी एक ग्रेट प्लेयर नहीं है. सो व्हाट डिड वी डू हियर, सेंटेंस था धोनी इज़ अ ग्रेट प्लेयर. धोनी इज़ अ ग्रेट प्लेयर, धोनी एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी है. इसको हमने इंट्रोगेटिव में चेंज किया है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. इज़न्ट धोनी अ ग्रेट प्लेयर, क्या धोनी एक अच्छा प्लेयर नहीं है. सो दिस वॉज द मेथड ऑफ चेंजिंग एन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव. ये तो थी एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने की. Now let's see the example of changing negative sentences into interrogative. अगर कोई assertive sentence negative form में दिया हुआ है उसको आपने interrogative में कैसे change करना है. Let's see. The sandwich was not tasty. Let's take this example. The sandwich was not tasty. This sentence you need to change it into interrogative. अब इसको change करने के लिए first step हमने क्या follow करना है, हमने negative को किस में change करना है. सबसे पहले affirmative में मैंने step 1 में जैसे बताया था. अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है. तो इसको अफर्मेटिव में चेंज करते हुए हमने क्या किया, द सैंडविच वॉज टेस्टी. नेगेटिव था, सैंडविच वॉज नॉट टेस्टी. अफर्मेटिव क्या बन गया, द सैंडविच वॉज टेस्टी, सैंडविच टेस्टी था. आफ्टर चेंजिंग इट इनटू अफर्मेटिव वी हैव टू चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव. दैट इज वॉज द सैंडविच टेस्टी, क्या सैंडविच टेस्टी था. तो दिस इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ चेंजिंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव. अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो सबसे पहले आपने उसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है. आफ्टर कन्वर्टिंग दैट सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस वी विल चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव, राइट. अब ये तो थे रूल्स कि आपने असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कैसे करना है. अगर अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज करने के बाद इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. अगर नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में चेंज करने के बाद इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. अब कुछ और जो रूल्स हमने ध्यान में रखनी है while changing assertive sentences into interrogative. If you don't find any helping verb provided, if in the sentence there is no helping verb given, मैंने आपको क्या बताया कि आपने helping verb को उठा के आगे लेके आना इंट्रोगेटिव में चेंज करते हुए. बट देयर मे बी सम केसेस वेयर यू विल नॉट फाइंड एनी हेल्पिंग वर्ब गिवन इन दिस सेंटेंसेस. तब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द टेंस ऑफ द सेंटेंस. सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसका टेंस कौन सा है, ठीक है. Usually if you remember while explaining tenses I have told you there are two tenses in which we don't find any helping verb in statement sentences. सिर्फ ऐसे दो टेंसेस हैं जिनमें स्टेटमेंट सेंटेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते. वो कौन से हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट.
सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने स्टेटमेंट सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना है, एंड सिंपल पास्ट टेंस में भी स्टेटमेंट अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वहाँ पे हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। तो अगर सिंपल या प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंस को हमने कैसे चेंज करना है इंट्रोगेटिव में? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट वेदर द सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। If the tense is simple present, which helping verbs do we use in simple present tense? Do or does. अगर अफर्मेटिव सेंटेंस जो दिया है जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है वो वाला जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे हमने कौन से वर्ड्स आगे लगाने हैं? डू और डज. इफ़ द गिवन सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस, अगर वो दिया हुआ सेंटेंस सिंपल पास्ट है तब हमने कौन सा वर्ड आगे लगाना है? डिड. कौन सा वर्ड आगे लगाना है? डिड. Okay, so there might be some cases where you will not find any helping verb. Those sentences will be either simple present or simple past. So we will be either using do or does or did. Let's see the example. He plays cricket. This is an example of an affirmative sentence जहाँ पे हमने कोई statement दी है, कोई line बोली है कि वो cricket खेलता है. Now you don't find any helping verb used here. So which tense is this? He plays. He के साथ उन्होंने सीधा यूज़ किया है play. Play is the first form of verb. Along with play they have used s. It means this is simple present tense. क्योंकि simple present tense में हम verb की first form यूज़ करते हैं, साथ में s या es यूज़ करते हैं, और simple past में हम verb की second form of verb यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे play is the first form of verb. That's why this is simple present tense. So we found out that this sentence is given in simple present tense. And if the sentence is simple present, which helping verbs we are going to use in the very beginning of the sentence? Do or does. And if you remember in the videos of tenses, with he, she, it, name or singular, which helping verb do we use in simple present? Does. And do किनके साथ यूज़ होता है? कौन से सब्जेक्ट्स के साथ? I, we, you, they, plural. If you have not seen the videos of tenses, I recommend you to go through the videos of tenses once again. See the rules of simple present and simple past once again. You will get to know the point I am explaining here. So here, he is the subject, so that's why we will use does helping verb here. So first of all, we need to change the affirmative sentence into negative one. कैसे चेंज होगा वो नेगेटिव में? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. तो हमने डज वाला जो मैंने यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट में क्लियर किया था कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है तो डू या फिर डज या फिर डिड यूज़ करना है. डिड हमेशा सिंपल पास्ट अगर यूज़ हुआ हो टेंस तब आपने यूज़ करना है. तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस था, सिंपल प्रेजेंट में डू या डज यूज़ करना है. डज कब यूज़ करना है? जब सब्जेक्ट्स हो ही, शी, इट, नेम सिंगुलर. डू कब यूज़ करना है? जब सब्जेक्ट्स हो आई, वी, यू, दे प्लूरल. तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही के साथ हम यूज़ करते हैं डज. तो इसको नेगेटिव में चेंज करते हुए हमने कैसे चेंज किया? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है सिंपल प्रेजेंट में? डज. इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया. आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू नेगेटिव, व्हाट डू वी नीड टू डू? इंट्रोगेटिव में अब चेंज करना है. इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं सबसे पहले क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है. अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं? डज. तो यहाँ पे डज आगे आ जाएगा. तो कैसे चेंज किया हमने इसको? दो तरीके हैं. डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता? या फिर डजंट ही प्ले क्रिकेट. दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो. तो मीनिंग वही रहा कि वो क्रिकेट खेलता है. इसको हमने इंट्रोगेटिव में चेंज किया. क्या? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता? डजंट ही प्ले क्रिकेट. तो इसका आंसर क्या आएगा अफर्मेटिव में? ही प्लेस क्रिकेट, कि हाँ वो खेलता है. राइट. सो दिस वॉज द रूल ऑफ चेंजिंग assertive sentence into interrogative when there will be no helping verb given. Another case which you may find while changing assertive sentence into interrogative is with the words never or no. अगर किसी assertive sentence में negative sentence दिया गया है और वो negative sentence में use हुआ है never word, अगर तो never word use हुआ है तो you will change that into
the word into ever, and if no word is given you will change that word into any. Let's see these with the examples. Ajay will never forget my kindness. एक assertive sentence है, एक negative sentence है ये, कि अजय मेरी kindness कभी नहीं भूलेगा. How do we change it into interrogative? will आगे आ जाएगा. will is the helping verb here. इसको उठा के हमने आगे लेके आए. क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लेके आए. will आगे आ गया. आफ्टर दैट will अजय ever, नेवर की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पे? ever. will अजय ever forget my kindness? तो अगर आपने असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है और आपके सेंटेंस में एक नेवर वर्ड यूज़ हुआ हो तो आपने उस नेवर वर्ड को चेंज कर देना है एवर में. विल अजय एवर फॉरगेट माई काइंडनेस? नेक्स्ट सेंटेंस विद वर्ड नो. अगर नो वर्ड यूज हो, नो वन नोज यू, तो इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करोगे? नो वर्ड को आपने किस में चेंज करना है? एनी में. कैसे चेंज हो जाएगा? नो वन नोज यू. डज एनी वन नोज यू? नो की जगह पे क्या यूज़ किया? एनी. डज एनी वन नोज यू? क्या आपको कोई जानता है? ठीक है. तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट सेंटेंस है वहाँ पे मैंने गलती से इंट्रोगेटिव वाला साइन लगा दिया. दिस हियर you will not use interrogation sign. You will be using full stop because this is assertive sentence. No one knows you. कोई भी आपको नहीं जानता है, नेगेटिव है. ठीक है. इसको चेंज किया. does anyone know you? Next case which you may find is the words with the words everyone, everybody and all. अगर ये वाले वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में, तो इनको, इन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस को हमने कैसे चेंज करना है इंट्रोगेटिव में? विद द वर्ड हु. कोई भी ऐसा सेंटेंस जो बिगिन हो रहा है एवरीवन या एवरीबॉडी या ऑल के साथ असर्टिव, उसको हमने इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. तो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल यूज हु. अलॉन्ग विद हु वी विल अप्लाई डजंट और डोंट और डिडंट. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट है तो डजंट और डोंट यूज़ करेंगे. अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा तो डिडंट यूज़ करेंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. एवरीबडी लाइक्स टू बी ग्रेट. हर कोई महान बनना चाहता है. एवरीबडी के साथ शुरू हो रहे हैं सेंटेंस, और अगर एवरीबडी वर्ड है तो किसके साथ यूज़ करेंगे? हम शुरू करेंगे सेंटेंस हु के साथ. कैसे चेंज किया? हु डजंट लाइक टू बी ग्रेट. कौन पसंद नहीं करता है महान बनना? तो इसका आंसर क्या आएगा? एवरीबडी. हर कोई पसंद करता है महान बनना. ठीक है. या फिर ये सेंटेंस कैसे चेंज हो सकता है? डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बी ग्रेट. क्या हर कोई महान नहीं बनना चाहता? इसका आंसर भी क्या आएगा? एवरीबडी लाइक्स टू बी ग्रेट. हर कोई महान बनना पसंद करता है. तो ये दोनों ही सेंटेंसेस सही है. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आपने हु के साथ यूज़ करना है. अगर आपने फर्स्ट वाला जो वेरी फर्स्ट मैंने रूल एक्सप्लेन किया है कि वो जो हेल्पिंग वर्ब है हमने आगे ले आना है और जो सब्जेक्ट है वो पीछे आ जाएगा, तो दिस इज़ अ यूनिवर्सल रूल. ये तो सिंपल हमेशा हमने इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं. माइंड में रखा ही हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट को पीछे ले आते हैं. तो इनमें से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको ईजी लगता है, तो वो मेथड आप यूज़ करो. यूजुअली क्या करते हैं कि जो एवरीबडी, एवरीवन या ऑल वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हुए हु के साथ बिगिन कर लेते हैं. दोनों ही सही है. या आप ये वाला मेथड यूज़ कर लेना या फिर आप ये वाला. सो दीज वर द रूल्स ऑफ चेंजिंग इन असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव. तो ये रूल्स थे असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए. Follow these rules, go through the rules, go through the video again and again. After you have got all the rules, try to change the sentences. जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है आपके चैप्टर में, वो मैंने अभी सॉल्व करके आपको नहीं दी है. मैंने जस्ट आपको रूल्स एक्सप्लेन किए हैं. तो यू गो थ्रू द रूल्स, ट्राई टू मेक द sentences yourself. I will be giving you the answers, no doubt. I will be explaining the answers as well. But first, you try to solve the exercise number 149 which is given in your book. ये वाली जो 149 एक्सरसाइज है, आई एम नॉट सच अ फूल एज टू बिलीव दिस. ये असर्टिव सेंटेंसेस वाली है. ये वाले जो सेंटेंसेस है वो असर्टिव हैं और इनको आपने चेंज करना है इंट्रोगेटिव में.
तो जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है, वो रूल्स फॉलो करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आप ट्राई करो इन सेंटेंसेस को खुद से चेंज करने का। तो फिर उसके बाद जो मैं एक्सप्लेन करूँगी आंसर्स, उनके साथ आप मैच करके देख लेना वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। थैंक यू।